everyone. It is with great enthusiasm that I, Mariam Malik, IIC Student Convener and Innovation Ambassador, extend a very warm welcome to all present here today. I am delighted to host this exciting and innovative session organized by the institution's Innovation Council of DAV College for Girls, Yamunanagar. Today's event, AI-Powered Solution Expo Demo Days for AI Prototypes, is a celebration of creativity, technology, and innovation. This platform not only showcases brilliant ideas but also encourages your minds to think beyond boundaries and create impactful solutions. I'm also excited to share that along with this session, we have a prototype competition where students will present their innovative AI and industry-based programs. These prototypes reflect dedication, creativity, and problem-solving abilities of our students. We wish all participants the very best of luck. Now, it is time to extend a heartfelt welcome to our esteemed dignitaries. We feel honored to welcome our respected officiating principal and President IIC, Dr. Surinder Kaur, whose constant support makes such event possible. I also warmly welcome Convener IIC, Mrs. Vivek, and also welcome Faculty Coordinator of this program, Mrs. Mamta Thapar, for her guidance and encouragement. A very special welcome to our IIC student members and all the participants. And of course, a big welcome to our wonderful audience. Your presence add value and energy to this event. Now, we move forward to welcome our esteemed resource persons. We are privileged to have Mrs. Mamta Thapar, Innovation Ambassador, with us. Please give a huge round of applause for her. We also extend a warm welcome to Ms. Khushi Kumari, Student Innovation Coordinator and Innovation Ambassador. Give it up for Ms. Khushi Kumari. We are truly grateful for your presence and look forward to gaining valuable insights from your expertise. With this, we begin today's insightful session, and we request everyone to stay engaged and make the most of this learning opportunity. Now, by this, I would like to invite firstly our first resource person, Mrs. Mamta Thapar, on the stage. Please give a huge round of applause for her. Thank you, Mariam. Good morning all. Respected Principal Ma'am, Vivek Ma'am, and my dear students. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आइडिया टू प्रोटोटाइप। एआई के साथ आप अपने आइडिया को प्रोटोटाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जो सेकेंड रिसोर्स पर्सन हमारे साथ है खुशी, वो आपको बताएगी प्रोटोटाइप क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, बट कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर काम भी किया है, आपने अपने कुछ प्रोटोटाइप्स भी बनाए हैं। बट पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे कि क्या होता है। अब फ्रॉम आइडिया टू प्रोटोटाइप, आइडिया हमें एआई अब हमें कैसे हेल्प करता है। इसमें एआई की हेल्प से आप आइडिया को प्रोटोटाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल आप क्या करते थे, मुझे कोडिंग करनी पड़ती थी। देखो जैसे लिखा है कि एआई आपको हेल्प क्या करता है, आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। आप किसी आइडिया को किसी ऐप में इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब देखो पुराना तरीका क्या था, वो कहते हैं ट्रेडिशनल क्या प्रॉब्लम आती थी, यही सब प्रोसेस होता था कि आपको बहुत सारे मंथ्स लग जाते थे। आप पहले सोचते हो उसको, ठीक है, जैसे आप SDLC में पढ़ते हो, आप आइडिया को सोचोगे, डिस्कस करोगे, रिसर्च करोगे उसके ऊपर। जब करके आप थोड़ा सा वहाँ तक पहुँच जाओगे तो क्या होगा, आपको कोड लिखना पड़ेगा। कोड को कन्वर्ट करने के लिए, कोड को लिखवाने के लिए आपको एक टीम चाहिए। टीम में जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उनको आपको पे करना पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं। और आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे उसके बाद जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो लोग क्या करेंगे, आपने आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया तो उसके बाद क्या होगी, उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसमें चेंजेस आते हैं, ऐसे आइटरेशन चलती रहती हैं। आप लोगों ने भी काम किया हो तो यही है ना, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के बाद आप देखते हो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, फिर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उन टूल की हेल्प से आप काम करते हो। बट पहले काम कैसे होता था, आपको बड़े बड़े कोड्स लिखने पड़ते थे, ठीक है। कोड लिखने में बहुत टाइम निकला, सब जब तक आपका आइडिया, आप ये सारे प्रोसेसेस के साथ विदाउट एआई जब होता था, आप लिखवा कर आप प्रोटोटाइप की स्टेज में आओगे, फिर प्रोटोटाइप से आपको आगे जाना है। जब फास्ट हो जाएगा, आप बड़े लेवल पर बनाओगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे, इंडस्ट्रीज में जाएगा,
इतनी देर तक अगर किसी और ने उसके ऊपर काम कर लिया तो आपका आइडिया आपका रहा नहीं ना, कोई भी उसे यूज कर सकता है। तो अब एआई इसमें हमें कैसे सपोर्ट करती है, अब देखो एआई पैराडिग्म शिफ्ट स्पीड एंड इंटेलिजेंस। क्या फायदा हुआ एआई से हमें, हमारी स्पीड बढ़ गई, फास्टर हो गया। आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, विद द हेल्प ऑफ एआई आप एआई में डिफाइन कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के मेरे अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशंस है। आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओगे, आप उससे इनपुट्स मांगोगे, वो आपको सजेशंस देता है, आप फिर उसमें चेंजेस करते हो। दिस टाइप आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना होता है मुझे क्या चाहिए, बट आपको लगता है क्या इससे पहले ये बताना सिर्फ इतना ईजी था? अभी आप बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, कैसे करेंगे, क्या होगा। मेरे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ती थी, शायद मैं 10 बार सोचूंगी ये करेगा ये नहीं करेगा, इसके पास जाने में मेरा टाइम लगेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी इसके पास टाइम नहीं है, ये चीज़ें होती है ना। तो उस केस में क्या है, हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एआई को डिस्क्राइब करना है, ईजियर टू इम्प्रूव। वो आपको जो भी चेंजेस देता है उसके बाद आप क्या करोगे, वो सारे चेंजेस लोगे, आपने किया भी होगा ऐसे। वो चेंजेस लेने के बाद आप उसमें क्या करते हो, फिर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस लगती हैं वो आपको आपने सोचा 40%, एआई ने उसमें 40% और ऐड कर दिया, 80% हो गया। फिर आपने क्या किया, उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट किया, आपको लगा नहीं ये मेरी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट ये थी, तो आपने अपनी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट दी, अकॉर्डिंगली वो उसको चेंज करेगा। ठीक है, तो एआई की हेल्प से चीज़ें आसान हो गई, चीज़ें फास्टर हो गई, आपको सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पड़ता है और आपके लिए इम्प्रूवमेंट्स आसान होती है। तो जो हम आज बात कर रहे हैं, जो आप डेमो दोगे, आप लोगों ने जो किया है कि एआई की हेल्प से कैसे एक आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मेन पिलर, एआई फॉर रिसर्च एंड अर्ली आइडियाज। इसके लिए यूज करते हो एआई को, हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं और अर्ली आइडिया जनरेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने दो नाम दिए हैं, एक फर्स्ट आपके पास क्या है typr.ai, दूसरा आपके पास क्या है फायरबेस स्टूडियो। ऐसे ही नाम मैंने दो टूल्स के नाम लिए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब आपके पास प्रोटोटाइपर यार क्या है, इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे, आपके पास एक टूल है, आप क्या करते हो, चैट के थ्रू रिसर्च करते हो, अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, आपकी इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। वो कहते हैं सपोज इफ यू वांट टू बिल्ड अ मील प्लानिंग ऐप, मतलब मुझे मील की प्लानिंग की एक ऐप इम्प्लीमेंट करनी है, मैं दूंगी एआई कैन हेल्प यू टू सी बट पीपल ऑलरेडी यूज। एआई में डालकर आपको पता चल जाता है कि ऑलरेडी आपको नहीं पता लाखों चीजें चल रही होंगी। एआई की हेल्प से आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने डाला, आपने देखा कि कौन कौन से कितनी मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल हैं, कंपैरिजन कर सकते हो क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल है। कई बार होता है मैंने 20 देखी 30 देखी, बाकी मुझसे रह गई, तो यहाँ से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, मुझे किसके ऊपर काम नहीं करना है, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है, मुझे उससे आगे जाना है। अब फायरबेस स्टूडियो, टाइप योर ऐप आइडिया इन प्लेन वर्ड्स। अब ये भी आपको क्या करेगा, सिंपल दोगे, आई वॉन्ट अ हैबिट ट्रैकर फॉर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर इसको दिया तो वो आपको क्या करेगा, बहुत सारी ऐसी स्क्रीन दिखा देगा, ऐसे फीचर्स दिखा देगा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब सेकंड पिलर को क्या कहता है, एआई ड्रिवन डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग। अब इसमें क्या है, आपने क्या क्या यूज किया, टर्न योर टेस्टेड आइडिया इनटू वर्किंग वोकम पीपल, मतलब आपने एक आइडिया लिया, आप लोग अब वर्किंग क्या हो गया, प्रोटोटाइप मतलब एक छोटा सा वर्जन जो क्या है एक्चुअल वर्किंग दिखा रहा है। प्रोटोटाइप यही होता है ना, सपोज मुझे कोई बड़ी सी मशीन बनानी है, पीपी चेक करने की मशीन बनानी है, अभी एग्जैक्ट तक नहीं पहुंची, मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, वो मेरे फ़ोन पर एज ऐप आ जाएगी, मैं क्या करूँगी, अपनी छोटी सी क्लास के ऊपर उसको टेस्ट करके देखूंगी वो क्या रिजल्ट दे रही है। ठीक है, तो इसमें तीन आपके पास चीज़ें क्या गिवन है, फिग्मा में मायरो एआई प्रोटोटाइप जनरेटर और फायरबेस स्टूडियो। अगेन हमारे पास तीन ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लेन वर्ड्स में अपनी जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी मेरे मन में थॉट आ रही है, सपोज आप गांव में रहते हो, कुछ बच्चे गांव में रहते हैं, पेरेंट्स हमारे किसान हैं, ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप बस से जाते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है, आपके साथ मदर्स होती हैं, सिस्टर्स हैं, घर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इश्यूज हैं जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को कई बार हम क्या करते हैं, इग्नोर करने की जगह अगर मैं सोच कर उसके ऊपर थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करूँ और देखूँ कि क्या पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ एआई मैं वहाँ पे डालूँ, वो मुझे सजेशंस देगा, फिर मैं देखूँ क्या वो मेरे आसपास कहीं वर्क कर रहे हैं। जैसे बच्चों ने अपनी ऐप इम्प्लीमेंटेशन की है, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है, तो उनको हमने यही बोला है कि आप एग्जीक्यूट करके देखो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नियर बाय फार्मर्स के साथ कि क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब फ्रॉम स्केच टू स्क्रीन फास्ट, आसान हो गया है काम,
एआई से अगर मुझे प्रोटोटाइप बनानी है तो काम मेरे लिए आसान कैसे है? स्केच से स्क्रीनिंग पर आना, मतलब आपने छोटी जो एप्स अभी इम्प्लीमेंट की है, जो भी जिनका आप प्रोटोटाइप्स का डेमो भी दोगे, आपके दिमाग में आइडिया था, आपने टूल्स यूज किए, उनकी हेल्प से आपके पास बटन्स बन गए, सपोज लॉगिन स्क्रीन आपने बना दी, ठीक है, आप एक पर्सन को लॉगिन करा रहे हो, दूसरों को करा रहे हो, दोनों का डेटाबेस मैच कर रहे हो, सपोज कोई फार्मर से रिलेटेड, जैसे अभी बच्चे अपनी के बारे में प्रोटोटाइप के बारे में बताएगा, तो वो लीव्स देखकर कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, तो आप इजीली क्या आ गए विद द हेल्प ऑफ एआई, जो आपके दिमाग में था या जो आपके आसपास की प्रॉब्लम थी, आपने बहुत जल्दी उसको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब थर्ड पिलर क्या है? एआई असिस्टेड डेवलपमेंट एंड आइटरेशन। इसमें आप क्या करते हो? बिल्ड फास्ट विद एआई, फिग्मा में और फायरबेस स्टूडियो, इन तीनों की हेल्प से हमारा क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी अब आप भी जो ऐप बनाने के लिए टूल्स यूज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बहुत जल्दी उन एप्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आइटरेशन का मतलब क्या है? आपने मुझे दिखाया, मैंने बोला कि बेटा इसमें ये चीज़ मिसिंग है, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, तो आप क्या करोगे, ठीक है मैम इसमें इम्प्लीमेंट करती हूँ। आपने 4 अपने फ्रेंड्स को दी वो है, आपने कहा कि एक बार अपने घर में टेस्ट कराओ, तो अपने घर में उन्होंने 4 लोगों को दिखाया, सपोज एक फार्मर से रिलेटेड ऐप है, उन्होंने डेटा चेक किया कि क्या डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उस डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने एंटर करके देखी, सपोज कहीं वो लीव्स को आइडेंटिफाई करके कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने चेक किया कि सही में ये हो रहा है या नहीं हो रहा, या 2-3 तरह की चीज़ों पर ये काम कर रहा है, बाकी चीज़ों पर नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी लीव्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिनका कलर बहुत जल्दी येलो या डार्क हो रहा है वो मुझे बता रहा है, कम वाले नहीं जल्दी बता पा रहा, तो आपको बोला जाएगा कि ये भी ऐड करो, इसके थ्रू भी चेंजेस हो। फिर आपने आइटरेशन करके अपनी ऐप में या प्रोटोटाइप में फिर से चेंजेस किए, वो चेंजेस करने के बाद जिसने आपको वो चेंजेस सजेस्ट किए थे आप दोबारा दोगे उसे, उसके अकॉर्डिंग हो गया, तो आप फिर उस लिमिट को क्या करोगे, एक्सटेंड कर लोगे कि अब आपने अपनी फैमिली में टेस्ट किया, अब 4 और फैमिलीज के पास जाए। क्लियर है? तो बार बार आइटरेशन जो पहले बहुत मुश्किल होती थी हमारे लिए, आसान हो गई। जिसने मुझे प्रॉब्लम बताई, मैंने एक जो भी टूल यूज़ कर रही हूँ उसको दिया, उसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट हो गया। अब एआई प्रोटोटाइप टूल स्टार्ट फॉर 2026, इसमें आपके पास क्या आ गया कि पहले प्लानिंग करते हैं, हम प्लानिंग करते हो, आप सबने भी यही किया, पहले आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग आई, प्लानिंग के बाद आपने उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया। प्रोटोटाइप का मतलब एक छोटा सा वर्किंग मॉडल बनाया आपने उसका, ठीक है, उसके बाद जब वर्किंग मॉडल आपने बनाया, वर्किंग मॉडल आपका इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद आइटरेशंस हुई, आइटरेशंस के बाद जब रिजल्ट्स आ गए आपने छोटी सी ऐप में कन्वर्ट किया उसको। आइडिया क्या है? अ रेसिपी ऐप दैट लुक्स एट द फोटो ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड सजेस्ट व्हाट टू कुक। फॉर एग्जांपल, स्नैप अ पिक्चर ऑफ एग, चीज एंड स्पिनच एंड इट माइट सजेस्ट कि ऑमलेट बन सकता है। मतलब आपका आइडिया क्या है कि कुछ सब्जियां पड़ी हों या कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हों, आप एक ऐसी ऐप प्लान कर रहे हो, वो इंग्रेडिएंट्स देखकर आपको बता दे कि जो आपके पास अवेलेबल है इससे भी क्या क्या बन सकता है। तो ये क्या हो गया है? आइडिया है। टूल यूज, आपने फायरबेस स्टूडियो यूज किया, ठीक है, जो क्या बताएगा कि आपके ऐप का स्ट्रक्चर बताएगा। आपने जेमिनाई को यूज किया, जेमिनाई क्या करेगा, जेमिनाई वहाँ से वो फोटोग्राफ्स कैसे लेनी है वो देखेगा, ठीक है, जैसे टोमेटो, पिस्ता, ये जो भी आपके पास पड़ा है, जेमिनाई टूल की हेल्प से आपने क्या की, फोटोग्राफ्स ली, रिजल्ट आपके पास क्या हो गया कि एक 48 आवर्स में एक वर्किंग ऐप इम्प्लीमेंट हो गई। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, एक आइडिया से सॉल्यूशन पर जाने के लिए मुझे मंथ्स लग जाते थे, ठीक है। अब कैसे होता है, सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन बैठकर आप कोई भी आइडिया लो विद द हेल्प ऑफ एआई, आप उसको बहुत जल्दी एक छोटे से सॉल्यूशन या प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद उस प्रोटोटाइप का बहुत सारे अपने जो नेक्स्ट कमिंग आपके पास लोग इन टच हैं उनके साथ सर्वे करके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो कि कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है, उनके सजेशंस ले सकते हो। और ज़रूरी नहीं है, कई बार होता है मैंने कुछ बनाया बट साथ वाले मुझे कह रहे हैं कि नहीं ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे चाहिए नहीं, तो वहीं से मुझे पता चल जाएगा कि अब मुझे आगे नहीं जाना, मतलब इस आइडिया में इतना दम नहीं है, या इसके मार्केट में कोई आपको बताएगा कि मेरे पास तो आपसे बेटर ये 10 चीज़ें अवेलेबल है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता है मुझे वहीं छोड़ देना, मुझे आगे नहीं जाना। डन? क्लियर है सभी को? तो आप लोगों ने भी आज यही किया है, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, क्योंकि आज का हमारा प्रोसेस ही यही था, आप लोग बहुत टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे हो, आप सबके पास अपने अपने आइडियाज से आपने विद द हेल्प ऑफ एआई अंडर द गाइडेंस ऑफ खुशी द स्टूडेंट ऑफ DCA फाइनल, आपने ये किया, वो बच्चा आपको गाइड करता है, उसके सपोर्ट के साथ आपने टूल्स सीखे, उन टूल्स को यूज़ करके आपने क्या किया है, अपने अपने आइडियाज़ की छोटी छोटी प्रोटोटाइप
बनाने की कोशिश की है, जिसको आप अब क्या करोगे, आज यहाँ पर डिफरेंट अपने जो जजेस हैं उनके सामने शो करोगे, डिस्क्राइब करोगे और जो उनके इनपुट्स होंगी उसके बेसिस पर आपको उसके ऊपर जो भी और इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो करोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टॉपिक इज क्लियर? हमें करना क्या है क्लियर? और कहीं अगर हम थोड़ा सा लैग भी कर रहे होंगे तो हम उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करके, अगर हमारे आइडिया में किसी एक में भी दम होगा तो हम एक टीम बनाकर उसको साथ जोड़ के आगे चलेंगे और एक सक्सेसफुल ऐप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे जो लोगों को सॉल्यूशन दे पाए। डन? थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for such an enlightening session. I hope audience आपको कुछ जानने के लिए मिला, कुछ प्रोडक्टिव अच्छा सीखने को भी मिला होगा। एक बार जोरदार तालियां। And now, I would like to invite our next resource person, Ms. Khushi Kumari, Innovation Ambassador and Innovation Coordinator. Please give a huge round of applause for Khushi Kumari. A very good morning to everyone present here, respected principal ma'am, Vivek ma'am, Mamta ma'am, and all the teachers here, and my dear audience. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं that is about AI powered prototypes kind of. तो हर कोई आजकल AI यूज कर रहा है prototypes बनाने के लिए, and we are just so much listening this word prototype and prototype. But actually prototype होता क्या है और हम उसको क्यों यूज करते हैं अपने आइडिया को शोकेस करने के लिए, आज हम सबसे पहले ये जानते हैं। So basically जो आज हम देखेंगे that is AI powered solution expo from idea to prototype. So basically expo क्या होता है? Expo is a kind of a exhibition जहाँ पे आप अपने ideas को showcase करते हो, and from idea to prototype is that कि किसी भी चीज़ का प्रोटोटाइप या किसी भी चीज़ का कुछ भी सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया होता है, राइट, जिसके ऊपर आप लोग काम करते हो। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, व्हाई प्रोटोटाइप्स मैटर। प्रोटोटाइप्स मैटर क्यों करते हैं? बिकॉज आइडियाज आर जस्ट अ बिगनिंग। आइडियाज सिर्फ एक बिगनिंग होती है और बिगनिंग में ही लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की टीम लगेगी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, राइट। तो बहुत सारे लोग जस्ट आइडिया पे ही क्विट कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन दे डोंट नो कि वो कौन सा रोड मैप फॉलो करें अपने उस आइडिया से प्रोटोटाइप बनाने के लिए एंड देन एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट स्टॉप एट द आइडिया वाला स्टेज। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वहीं पर रुक जाओ। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो बना के देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली प्रोटोटाइप ब्रिज द गैप। प्रोटोटाइप ब्रिज द गैप का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई आइडिया है, आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके बीच में जो एक गैप आ जाता है कि हम उस आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, तो वो जो गैप है वो कौन फिल करता है? हमारा प्रोटोटाइप फिल करता है, राइट। सो बेसिकली every big innovation starts with an idea, but just having an idea is not enough, because अगर आपके पास कुछ भी आइडिया है और आप उसके अंदर एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो वो आइडिया किसी भी काम का नहीं है। एंड ऐसी जगह में आपका क्या काम आता है? प्रोटोटाइप काम आता है। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी। They just help us to test our idea to see actually if it is applicable or it is working or not. मेरे पास एक आइडिया है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या एक्चुअली में चीज़ बन पाएगी, क्या मैं जो सोच रहा हूँ सिर्फ हाइपोथेटिकल है, क्या मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ चुकी है कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो बेसिकली आज हम यही देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज प्रोटोटाइप। बेसिकली प्रोटोटाइप होता क्या है? सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो प्रोटोटाइप किसी भी प्रोडक्ट का एक अर्ली वर्जन है। एक फाइनल प्रोडक्ट में 10-20 लाख रुपए लगाने से पहले आप उसकी एक छोटी सैम्पलिंग करते हो, राइट। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस खोलना है, कैंडल्स वाला खोलना है फॉर एग्जांपल, तो आप लोग क्या करते हो? पहले सैम्पल्स बनाते हो ना, और उन सैम्पल्स को लोगों को दिखाते हो, बेचते हो, अपने फ्रेंड्स को देते हो, अपनी फैमिली को देते हो, फिर देखते हो कि क्या वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपने लार्ज स्केल पर शुरू करने से पहले अपने बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों को देना शुरू करा और वहाँ से आपने रिव्यूज लिए। सो बेसिकली दैट इज काइंड ऑफ प्रोटोटाइप। आपने कोई ऐप बनाई, उस ऐप को बनाने से पहले आपने उसे प्रोटोटाइप बनाया और 10 लोगों को बिठा के आपने देखा कि क्या वो लोग उसके अंदर अच्छे से लॉग इन उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो दैट इज व्हाट बेसिकली प्रोटोटाइप इज। अब क्या होता है
कि प्रोटोटाइप हमारा एक वैलिडेशन टूल है। ये हमें चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन में वर्क कर रही हैं हमें ये बताता है। देन इट इज़ अ कम्युनिकेशन व्हीकल। कम्युनिकेशन व्हीकल यदि फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसी के पास पैसे मांगने गई, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं बेसिकली, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लाइक कस्टमर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद टीम मेंबर्स हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी के पास कुछ भी अपना शो करने जाते हो कि आपके पास आइडिया है, तो आपको एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के लेके जाना होता है ना, ताकि आपकी चीज़ों को वो देख सके कि एक्चुअली वो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होगी। बिकॉज बोल देना इज़ नॉट इनफ जब तक इंसान उसे खुद विजुअली नहीं देखता, क्योंकि विजुअली चीज़ें सोचना एक अलग चीज़ होती है और देखना एक अलग चीज़ होती है। जब आप देखते हो तो चीज़ों को लेकर आपको क्या आती है, क्लैरिटी आती है, तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट भी करते हो, राइट। एंड देन लास्ट इज टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जब आपको, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको टेस्ट करना है कि वो लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करते हो, प्रोटोटाइप, ताकि आप ये देख सको कि जो भी चीज़ें टेस्टिंग फेज में है वो एक्चुअली में काम कर भी रही हैं नहीं, रादर देन कि आप उस चीज़ को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करो, बेटर कि आप उसको पहले छोटे स्केल से स्टार्ट करो। सो बेसिकली आपका प्रोटोटाइप किस किस चीज़ में हेल्प करता है, वो टेस्ट करता है कि क्या आपका जो आइडिया जो आपने देखा है क्या वो एक्चुअली वर्कआउट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और हमारी जो आइडिया है और हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो हमारा प्रपोज सोल्यूशन है वो हमें लोगों को बताने में क्या करता है, प्रोटोटाइप हेल्प करता है। देन अब मान लो प्रोटोटाइप मैंने बना लिया, अब 10 लोग लॉगिन करने बैठे हुए हैं, अब कुछ को उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ वहीं पे सॉल्व हो जाएगी ना। अगर मान लो मैं बहुत सारा पैसा लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर देती, ठीक है, या फिर कोई ऐप बना लेती फॉर एग्जाम्पल, और उस टाइम पे लोगों को एरर आते, तो आपको फिर से उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा लगाना पड़ता ना। तो प्रोटोटाइप ने क्या किया कि अर्ली स्टेज टेस्टिंग कर ली और जितने भी लूप होल्स या कमियां थी उसको पहले ही अर्ली स्टेज पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि द गोल ऑफ प्रोटोटाइपिंग इज क्लैरिटी नॉट परफेक्शन। आपको क्लैरिटी चाहिए चीज़ों की कि हाँ चीज़ें क्लियर हो गई कि बेसिकली आपका जो ऐप है या कोई भी टूल है वो क्या वर्क कर रहा है। A prototype that clearly communicates your concepts and validates core assumption is infinitely more valuable than an over-polished but incomplete implementation. ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोटोटाइप 100% ही वर्किंग होना चाहिए या फिर 100% परफेक्ट ही होना चाहिए। अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है तो इट इज़ नॉट लाइक कि वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तब हम आते हैं रोल ऑफ प्रोटोटाइप इन इनोवेशन। तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल कि इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या फ़र्क होता है। डू एनीवन ऑफ यू नो? सो बेसिकली इन्वेंशन इज समथिंग जब आप कोई नई चीज़ खोजते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्राहम बेल ने फ़ोन ढूंढा था, मतलब फ़ोन की खोज की, लेकिन फ़ोन बनाया था, लेकिन उन्होंने वो बना दिया, दैट वाज इन्वेंशन। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, उस फ़ोन से एक स्मार्टफोन बनाया, दैट इज़ इनोवेशन। अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि भाई फ़ोन तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो मैं इसमें क्या चेंज कर सकती हूँ, तो क्या कभी आप लोग स्मार्टफोन्स और इतने एंड्रॉयड एप्पल चला रहे होते? नहीं चला रहे होते ना, क्योंकि फ़ोन तो एक ने बना दिया, इन्वेंशन तो हो गई, अब हम क्यों काम करें उस पर। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप एग्जिस्टिंग चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। जो चीज़ें हैं, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिसके अंदर लूप होल्स होंगे, और ऑफ कोर्स कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो कैच दैट लूप होल्स ना। आप इन्वेंशन नहीं कर सकते, ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई, तो आप इनोवेट करो ना चीज़ों को, एग्जिस्टिंग चीज़ों में आप चेंजेस लेके आओ, जो भी उसके अंदर लूप होल है उसको लेके, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए जो कि आप कैसे करते हो। अब मान लो कोई आपको आइडिया, अब ऐसे सोच का इंसान को आइडिया आएगा नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, आपको अपने होराइजन्स वाइड करने होंगे, आपको चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है जिसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यमुनानगर में एक ऐप स्टार्ट हुई है जिसके अंदर आपको फोटो क्लिक करनी होती है और 48 आवर्स में नगर निगम वहाँ पे सफाई करवा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, लोगों ने देखा ना कि गाड़ियाँ आ रही हैं गार्बेज कलेक्शन वाली, लेकिन स्टिल वहाँ पे कोई भी अच्छी तरीके से सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या करा बेसिकली कि एक ऐप ही बना दी उस प्रॉब्लम के लिए। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप लोग कुछ नया नहीं कर सकते, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इन्हांस करने की ज़रूरत है। अपने आसपास देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे अभी ये वाले एसी है, पहले दूसरे वाले एसी होते थे, तो अगर हम देखें कि लोग ये बोलते कि भाई हमें क्या ही ज़रूरत है, एसी तो आ ही चुका है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो आप हमेशा चीज़ों में इनोवेशन कर सकते हो। देन कम्स प्रोटोटाइप। आपने आइडिया ढूंढ लिया, अब आपने उसका एक प्रोटोटाइप बिल्ड करा टू टेस्ट द फिजिबिलिटी। बेसिकली फिजिबिलिटी क्या होता है
कि आपकी जो चीज़ आपने सोची और बनाई है वो कितने ज़्यादा लोग उसे एक्चुअली में एक्सेस और यूज़ कर पा रहे हैं और वो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है चीज़ों को लेने के लिए, ठीक है। देन कम्स टेस्टिंग। तो जो आपका प्रोटोटाइप बन गया बेसिकली, तो क्या हो जाता है कि आप एक टेस्टिंग वाले फेज पे आ जाते हो। आपने प्रोटोटाइप बनाया, आपने 10 लोगों से उसे टेस्ट करवा लिया, ठीक है। अब टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आपने क्या करा कि मैंने कोई ऐप बनाई, मैंने आप 10 लोगों को दे दी फॉर एग्जाम्पल, कि आप लोग इसे चेकआउट करो कि भाई ये एक्चुअली में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है और मुझे फीडबैक दो। तो उसके बाद क्या होगा कि मैं उस फीडबैक से आप लोगों की ये चीज़ देखूंगी कि मेरी इस ऐप में क्या क्या कमी है, एंड देन आई विल डू आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है कि आपने कोई चीज़ बना ली और आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो, उसको रिफाइन करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए। आप लोग क्या कहते हैं लैंग्वेजेस में भी आइट्रेशन पढ़ते होगे ना, जब बार बार लूप चलती है एंड ऑल। तो इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को रिफाइन करने के लिए बार बार चेंजेस करते हो। देन कम्स योर फाइनल प्रोडक्ट। जब आपका ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टेप्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर हम ब्रॉडर सिनेरियो में देखें तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं होने चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम टेस्टिंग पे देखें तो टेस्टिंग भी हमारे पास 3-4 टाइप्स की होती है, वैलिडेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, वी आर जस्ट मेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन हमारे पास जब आइट्रेशन हो जाती है, यानी कि हमने अपनी चेंजेस वगैरह सब कुछ कर ली, हमने दोबारा से टेस्टिंग कर ली, तो हमारे पास लास्ट क्या होता है जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं बेसिकली, यानी कि हमारा जब हम ऐप लॉन्च करते हैं लोगों के पास। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन कम्स लेवल्स ऑफ प्रोटोटाइप, अ प्रोग्रेसिव जर्नी। अब प्रोटोटाइप का क्या होता है बेसिकली, प्रोटोटाइप के भी ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे अब कोई भी चीज़ होती है तो उसके लेवल्स होते हैं, तो इसके भी लेवल्स है प्रोटोटाइप के। सबसे पहला लेवल होता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट ना करके एक सिंपल स्केच या ड्राइंग में उसे एक्सप्रेस करते हो या फिर लिखते हो या फिर लोगों को दिखाने के लिए आप बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि आपको एक कैंडल का बिजनेस स्टार्ट करना है फॉर एग्जाम्पल जस्ट, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि ड्रॉ करोगे ना कि आपको एक्चुअली और स्केच आउट करोगे या फिर डिजाइन बनाओगे कि आपको क्या करना है। सेम इन ऐप, अगर आप कोई ऐप बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप पहले सोचोगे ना कि मुझे ऐप बनानी किस पे है, मेरा इंटरफेस कैसा होगा, यूजर कहाँ से लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद मुझे कितने पेजेस चाहिए होंगे। सो बेसिकली वो क्या होता है कि आप कंसेप्चुअल डिजाइनिंग कर रहे हो अपने प्रोटोटाइप की। देन कम्स विजुअल। अब मैंने ये तो सोच लिया कि मेरा होम पेज होगा, मेरा एक अबाउट सेक्शन होगा, लेकिन वो कैसा दिखेगा विजुअली, क्योंकि अगर मैंने कोई एक ऐप डिजाइन करी है और वो मुझे देखने में ही अच्छी और इंटरेक्टिव नहीं लग रही, तो क्या आपकी ऐप या फिर कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट दोबारा विजिट करेगा? नहीं करेगा। विजुअल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रांड का कलर और ब्रांड का लोगो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी मार्केट प्रेजेंस उससे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो है और कोको कोला है, वेन एवर यू सी रेड कलर, आपके माइंड में सिर्फ 2 ही नाम क्लिक होते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जो रेड कलर में है, बट स्टिल उन्होंने अपनी मार्केट प्रेजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की है अपने कलर्स के साथ, दैट इज द ब्रांड कलर्स, कि कोई भी रेड कलर देखता है तो उन्हें यही 2 ब्रांड्स याद आते हैं। तो हमें अपनी किसी भी ऐप या किसी भी बिजनेस के मॉडल को इतना ज़्यादा अच्छा रखना होता है कि लोग उसे ब्रांड कलर और लोगो से ही गेस कर ले, ठीक है। तो विजुअल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है, जब वो पहली बार, आप कहीं पे भी पहली बार आप कहीं जाते हो तो आप सबसे पहले देखते हो ना कि अपीयरेंस क्या है या फिर कितनी ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट्स की गई हैं, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे हमारे पास कंसेप्शन प्रोटोटाइप में थोड़े बहुत लूप होल हो फिर भी चल जाता है, लेकिन विजुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी और रिफाइंड होनी चाहिए। देन कम्स फंक्शनल। अब क्या होता है फंक्शनल में, बेसिकली आपने कोई ऐप बनाई, ठीक है, आपने बटन पे क्लिक करा नेक्स्ट पेज की और बटन क्लिक ही नहीं हुआ, वो नेक्स्ट पेज पे गया ही नहीं, तो दैट इज योर फंक्शनल एरर। तो आपको अपनी ऐप में जो भी आप ऐप्स बना रहे हैं उसके अंदर फंक्शनैलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपने सबमिट का बटन लगाया, फॉर एग्जाम्पल आपने फीडबैक लिया, अब वो सबमिट ही कहाँ और आपको पता ही नहीं है, राइट। तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी जो फंक्शनैलिटी डिज़ाइन कर रहे हैं कि कौन सी क्लिक पे कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, तो अगर आप उसको अच्छे से डिज़ाइन करोगे तो आपका बेटर एक्सपीरियंस होगा यूज़र के साथ, वो इंटरेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट या फिर ऐप के साथ। देन हमारा लास्ट आता है टेक्निकल, दैट इज़ ऑलमोस्ट द फाइनल प्रोडक्ट जो हम दिखाते हैं, ठीक है। और जब हम किसी को स्केल करते हैं, मतलब या फिर किसी को भी शो करते हैं, तो हमारा टेक्निकल प्रोटोटाइप हम दिखाते हैं, जो कि टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होता है। टेस्टिंग आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ को टेस्ट करना कि एक्चुअली वो चीज़ वर्क कर रही है या नहीं, एंड डिप्लॉयमेंट इज बेसिकली डिलीवरी,
उस चीज़ की जो भी आपने ऐप या प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। एंड इसी तरीके से कंसेप्चुअल प्रोटोटाइप टू टेक्निकल प्रोटोटाइप आप 1 by 1 स्टेप्स करते हो और आप अपनी ऐप बिल्ड करते हो, ठीक है। सो वी मूव स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सिंपल टू एडवांस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल स्केचिंग करनी है अपने आइडिया की, देन विजुअल्स अच्छे करने हैं, फिर उसके अंदर फंक्शनैलिटी लेके आनी है, देन लास्ट आपका टेक्निकल प्रोटोटाइप बनाते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन कम्स थिंकिंग बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटोटाइप। सो बेसिकली टू मेक अ गुड प्रोटोटाइप वी शुड फोकस ऑन। अब आपको एक अच्छा प्रोटोटाइप बनाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज प्रॉब्लम क्लैरिटी, अनदर थिंग इज सिंप्लिसिटी एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक सिंप्लिसिटी, एंड द लास्ट वन इज यूजर सेंट्रिक डिजाइन। तो चलो आते हैं प्रॉब्लम क्लैरिटी पे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, ठीक है, और मुझे खुद ही नहीं पता कि एक्चुअली में कोर लेवल पे प्रॉब्लम है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती हूँ और मुझे कोई रूरल डेवलपमेंट या फिर रूरल हेल्थ केयर के लिए कोई ऐप बनानी है और मैं खुद जाके वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी ही चेक ना करूँ और यही ना देखूँ कि लोग एक्चुअली में किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और जो न्यूज़ में आ रहा है, जो अखबारों में आ रहा है, जो मैगजीन में आ रहा है, उन्हीं चीज़ों को लेके मैं ऐप बनाने की सोचने लग जाऊँ। सो विल दिस पॉसिबल कि वो एक अच्छी ऐप बन पाएगी और लोगों की हेल्प कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटी ही चेक नहीं करी। क्योंकि आपको पता है जब हम ग्राउंड रियलिटी में जाते हैं, जैसे हमारा जो ऐप है आशा ग्राम, उसके अंदर ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारी आशा वर्कर्स होती है वो एक्चुअली में सप्लाईज डिलीवर ही नहीं करती हैं, जो मदर्स होती है और जो चिल्ड्रन होते हैं उनको, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि उन्होंने रजिस्टर में एंट्री करवा ली, लेकिन फॉर एग्जांपल सामान नहीं दिया, तो इससे क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब लोगों के पास क्या है, सरकार के पास तो डेटा आ रहा है कि लोगों को मिल रहा है, तो आपके मान के चलो कि मिल रहा है भाई सबको सामान, राइट, बट एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या आपको मिल ही नहीं रहा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ चेक करो कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और आप उस प्रॉब्लम पे कैसे वर्कआउट कर सकते हो। देन कम्स सिंप्लिसिटी। अब मान लो कि मैं कोई एक हेल्थ केयर ऐप बना रही हूँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये समझूँ कि हेल्थ केयर ऐप में आपको कितने सटल कलर्स यूज़ करने होते हैं, कितनी सिंप्लिसिटी यूज़ करनी होती है, किन किन लैंग्वेजेस के ऊपर आपको वर्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई हेल्थ केयर ऐप बनाई, मैंने उसे इंग्लिश में बना दी उसकी लैंग्वेज, और मेरा जो यूज़र है वो उसे इंग्लिश आती नहीं, उसे हिंदी आती है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ उसे डिज़ाइन करो और एडिशनल फीचर्स ऐड ना करो, ये शो करने के लिए कि हाँ भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ डेवलप कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपनी ऐप बनाई थी आशा ग्राम, तो हमने उसको गाँव वाले लोगों के लिए बनाया है, एंड गाँव में हर कोई लिटरेट नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फ़ोन चलाने आते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ भी चलाना नहीं आता फ़ोन में, राइट, और वो सिर्फ पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो ऐसे टाइप में आप क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स यूज़ करोगे? नहीं करोगे। आप वहाँ पे बेसिक चीज़ें यूज़ करोगे, आप वहाँ पे बेसिक कलर्स यूज़ करोगे, आप बहुत सटल कलर पैलेट यूज़ करोगे, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें ओवर एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ नहीं करनी है। देन कम्स यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन इज ऑलवेज थिंक अबाउट यूज़र। अब मान लो मैंने वेरिफिकेशन में 5 स्टेप्स लगा दिए, अब मेरे यूज़र को तो 2 स्टेप ही आते हैं, OTP वाला या फिर मेल पे आ जाए, तो क्या वो यूज़र 5 स्टेप वेरिफिकेशन करेगा आपकी ऐप पे आने के लिए? नहीं करेगा ना। तो आप ये एक्चुअली में देखो कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं तो बच्चे कैसे उस चीज़ को ईजिली एक्सेस कर पाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये समझना है कि यूज़र को चाहिए क्या, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देख सकते कि यूज़र को क्या चाहिए तो आप कभी भी कोई अच्छा प्रोटोटाइप या कोई भी अच्छा ऐप नहीं बना सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंड यूज़र्स के माइंड में उन्हें क्या चाहिए आप वो चीज़ देखो एंड फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी वर्क फ्लोज को बनाओ। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ें बना देनी है कि 10 लोगों को वो चीज़ समझ ही ना आए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी ऐप्स होती है, फिर वैसे बहुत सारी गेम्स होती है फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो और वो गेम आपको समझ ही नहीं आए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स लगा दिए हैं, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ऐप आप डिज़ाइन कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं आपको बता देती हूँ लास्ट वाली स्लाइड से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत सिंपल और एक क्लियर प्रोटोटाइप को बनाओ, ठीक है। अब हमारे पास आती है प्रोटोटाइपिंग टूल्स। तो अगर मैं बताऊँ तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है। तो बेसिकली आपको किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चाहिए होता है UI UX डिज़ाइन,
कि आपका जो UI और UX सॉरी इससे पहले मतलब सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये तो फिर भी एक स्टेप अप हो गया। आपको कोई आइडिया है, आपको नहीं पता कि उस आइडिया का एक्चुअली मार्केट में एग्जिस्टेंस है या फिर उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर वो चीज़ एक्चुअली में इंप्लीमेंट होगी या नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था व्हाट बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर। सो प्लीज एनीवन प्लीज लेट मी नो कि आपको याद है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। जब आप AI ने आपको कुछ भी लिख के दे दिया फॉर एग्जांपल कि हाँ ये है बट इतने एग्जैक्टली हम उससे आगे से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अपना दिमाग लड़ा रहे हैं इन वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी, अगर मैं उसे समझाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने आइडियाज़ पे। ठीक है, आपने कोई ऐप डिज़ाइन करने का सोच भी लिया तो आप उसे बोलो कि इज़ देयर एनी राइवलरी और कॉम्पिटिटर जो हो इस वाली ऐप का, या फिर कोई भी ऐसा हो जो आपको बता सके कि इस वाले ऐप में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करने होते हैं एंड फॉर दैट यू हैव ग्रेट chatbot status ChatGPT and Claude. They are more than enough for you to start a refined problem statement अगर आपको बनानी हो तो। जब आपने उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें ले ली तो आपको एक रफ डिज़ाइन हो गया कि आपको चाहिए क्या, और जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो गया अब आपको क्या करनी है, विजुअलाइजेशन करने की, वो आपकी ऐप दिखेगी कैसे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, बेसिकली उसके लिए आपको चाहिए होता है UI UX डिज़ाइन, यानी कि यूज़र इंटरफेस जो है वो कैसा होगा। तो फॉर दैट हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल के टाइम में दैट इज़ फिग्मा। फिग्मा ने AI के साथ इंटीग्रेशन भी कर लिया तो चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी हो चुकी है। आप UI UX डिज़ाइन करने के लिए कैनवा भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि अब कैनवा में भी कोड और AI का फीचर आ चुका है। एंड उसके बाद अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, मैंने आपको क्या बोला था कि फॉर एग्जांपल आपको एक हेल्थ केयर की ऐप बनानी है, ऑल यू नो अबाउट Pinterest, जो लास्ट सेशन में बता दें कि अगर आपको कोई भी कपड़े खरीदने होते हैं तो आप इंस्पो लेते हो उस कपड़े की कि मुझे ये ड्रेस खरीदनी है या मुझे ये ग्लासेस चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह जब आप कोई ऐप या वेबसाइट बनाते हो तो आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई गांव के लिए ऐप बना रही हूँ तो पहले मैं बाकी ऐप्स के इंटरफेसेस देखूंगी, बाकी ऐप्स के फंक्शनैलिटीज़ को चेक करूँगी, ये देखूंगी कि वो कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी पेजेस यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स में। तो उसके लिए वी यूज़ ड्रिबल। ड्रिबल इज़ एन AI जो आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपको क्या कहते हैं अपना इंटरफेस कैसा रखना होता है। तो बेसिकली मैं बता रही थी कि आप उसे ड्रिबल से बना सकते हो। और एक और होती है Behance, तो यू कैन ऑल्सो Behance AI टूल टू अगर आपको कोई भी इंस्पिरेशन लेनी होती है। ठीक है, अब हमने बना लिया अपना UI UX डिज़ाइन, देन आप करते हो फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग कि बेसिकली आपका जो बाहर से आपकी वेबसाइट दिख रही है उसके कलर्स है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ है, उसमें जो फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ हुआ है, फ़ॉन्ट की फैमिली यूज़ हुई है, वो कैसी यूज़ हुई है, राइट। तो आपको उसके लिए अगर यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ कोडियम, एक बहुत अच्छा AI है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम कोडियम यू कैन यूज़ क्या कहते हैं स्टिच AI आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो पूरा का पूरा ही बना के देता है बट वो बहुत अच्छा फ्रंट एंड ही बना के देता है। एंड फॉर बैक एंड यू कैन यूज़ सुपरबेस। सुपरबेस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप सुपरबेस को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अपना बैक एंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो उसने ना आपको इंस्पिरेशंस दे दी कि आपको कैसी कैसी चीज़ें जो है वो अपनी ऐप में रखनी होती हैं, आपको क्या क्या कलर्स यूज़ करने होते हैं, कौन कौन से आप विजुअल्स यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इसने आपको अपनी इंस्पिरेशंस दे दी और इसने ये भी बता दिया कि कितने लोग ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क करें इससे इंस्पायर होके और कितने लोगों ने इसे लाइक एंड ऑल किया और आप इसे सेव भी कर सकते हो। तो ड्रिबल आपको ये सब चीज़ें बताते हैं और इससे क्या होता है ना कि आप एक्चुअली मार्केट की नीड समझ पाते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इट वांट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो डिज़ाइनिंग के लिए यू कैन यूज़ फिग्मा, कैनवा, अडोब। डेवलपमेंट टूल के लिए यू कैन यूज़ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML CSS आपको पता है, HTML आपका स्ट्रक्चर देता है, CSS आपकी स्टाइलिंग करता है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली इंटरैक्टिविटी और लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है हमारे फ्रंट एंड पे। ठीक है, देन आप MIT ऐप इन्वेंटर को यूज़ कर सकते हो अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए। देन यू कैन यूज़ टंकेबल जो कि आपका ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म होता है मोबाइल ऐप्स के लिए। सो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म इज दैट कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई ऐप ऐसी होती है जो एप्पल या किसी और उस पर नहीं चलती, तो टंकेबल आपको उसमें हेल्प करके देता है। देन कम्स AI टूल दैट इज ChatGPT, TensorFlow एंड APIs। अब मैं जो APIs का आपको बताने वाली हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम ऑफ यू आर यूजिंग APIs फॉर देयर प्रोटोटाइप। बेसिकली API क्या होता है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अब मान लो आप मीशो चला रहे हो, ठीक है, आपने मीशो में पेमेंट करनी है और मीशो से जब आप पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हो और वो डायरेक्ट आपको कहाँ पे जाता है, फ़ोन पे या गूगल पे, जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो, तो कोई एक कनेक्टिंग चीज़ होगी ना जो आपके एक क्लिक पे आपकी ऐप को स्विच कर रहा है, राइट। सो बेसिकली दैट इज API।
कम्युनिकेशन गैप लेके आता है दो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एप्स का, उनको कनेक्ट करने के लिए। एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई वेदर फोरकास्टिंग ऐप बनानी है या फिर आपको कहीं से भी डेटा लेना है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हो, API कीज यूज़ करते हो जहाँ से आप वो डेटा को लेते हो, ठीक है। सो API इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी ऐसा ऐप बना रहे हो जिसके अंदर आपको बहुत सारा डेटा चाहिए या फिर आपको बहुत सारे डेटा के साथ वर्क करना और डेटा सेट्स चाहिए आपको, ठीक है। देन कम्स ChatGPT, TensorFlow। अब बेसिकली क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे AI हैं, ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ समझो कि हर AI का अपना एक इंडिविजुअल काम है। अगर आप ये सोचो कि जो ChatGPT है, ऑफकोर्स वो फ्लायर जो है वो जनरेट करके दे सकता है, लेकिन एक ना और है, दैट इज नाइट स्टूडियो कैफे। वो भी बहुत अच्छे आपको क्या कहते हैं पोस्टर्स जनरेट करके देगा। अलॉन्ग विथ लियोनार्डो एक AI है, वो भी आपको बहुत अच्छे पोस्टर्स जनरेट करके देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप बनाना है, तो यू कैन यूज नोटबुक LM, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड AI टूल अगर आप उसे यूज करोगे, एंड दैट इज पावर्ड बाय गूगल ऑल्सो। तो इट इज बेटर कि आप उस चीज़ में क्या कर सकते हो कि आपने कोई ऐप बनाई, आपने रेपलेट से बनाई फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको उसका कोड भी देता है। आप उस पूरे कोड को कॉपी कर लो, गूगल AI स्टूडियो होता है, वहाँ पे जाके उसको कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लो और वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट कर लो। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पास पूरी कोडिंग है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जाके कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यू ऑल आर फ्रॉम BCA बैकग्राउंड, तो आपके लिए कोडिंग के अंदर कस्टमाइजेशन करना इज नॉट अ वेरी बिग डील जितना एक नॉर्मल पर्सन के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कोड भी सेफ पड़ा होगा, आपकी चाहे लिंक एक्सपायर हो जाए तब भी आपके पास एज अ फ्यूचर स्कोप आपके पास आपकी कोडिंग पड़ी हुई है। एंड अब देखो मैंने क्यों बोला गूगल AI वर्कस्पेस, मैं VS कोड ही बोल सकती थी। अब गूगल, अब क्या है ना कि फॉर एग्जांपल रेपलेट अभी नया नया आया है, मान लो कि ना चल पाया और अगले 3-4 साल में बंद हो जाए, क्योंकि अभी आपको पता है क्लॉड जो है वो बहुत सारी एप्स की जगह ले रहा है और बहुत सारी कंपनीज जो है वो शट डाउन हुई है क्लॉड की वजह से। तो अभी आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है ना कि क्लॉड रेपलेट की भी जगह ले लो और रेपलेट बंद हो जाए। तो इससे क्या होगा कि मान लो आपने प्रो खरीद के आपने अपना ऐप पब्लिश करवा भी लिया हो, तो वो वर्क तो करेगा नहीं, क्योंकि जिस ऐप से आपने बनाया वही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बट गूगल का क्या है कि अगर आप गूगल के साथ वर्क करते हो, अगर आप नोटबुक LM के साथ वर्क कर रहे हो, आप स्टिच के साथ वर्क कर रहे हो, आप क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट या ऐप में कंटेंट भी देना पड़ेगा ना, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो copy.ai। ऑफकोर्स ChatGPT आपको कंटेंट लिख के देगा, बट अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई एक AI डेवलप किया तो इट इज़ वेरी बेटर टू यूज़ दैट पर्टिकुलर AI। तो जो copy.ai है वो बेसिकली क्यों बनाया गया है, ताकि आप कंटेंट राइटिंग कर सको। तो rather than using ChatGPT or Claude or Gemini for content writing, you can use copy.ai, ठीक है। कि what makes a prototype expo ready। एक्सपो रेडी का मतलब क्या है कि एग्जिबिट करने के लिए रेडी आपका प्रोटोटाइप बेसिकली कब होता है। तो बेसिकली क्या है कि एक टू प्रेजेंट अ गुड प्रोटोटाइप, एक अच्छे प्रोटोटाइप को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आइडिया हर किसी के पास होती है बट कम्युनिकेशन स्किल हर किसी के पास नहीं होती, राइट। हर किसी के पास करेज नहीं होता बोलने का। अगर बहुत अच्छा आइडिया है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें तब तक अच्छे से वर्क कर पाएंगी जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, और व्हाट एक्चुअल यूज़र वांट्स, आप उस चीज़ का ध्यान रखो कि एक्चुअली यूज़र को चाहिए क्या। देन कम स्मूथ डेमोन्स्ट्रेशन। स्मूथ डेमोन्स्ट्रेशन इज लाइक दैट कि जब आप उसको किसी के सामने प्रेजेंट करने गए हो या फिर जब कोई और उसे यूज़ कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा है उस ऐप को चलाते हुए। मान लो कि आपने कोई बटन क्लिक करा और वो बटन क्लिक ही नहीं हो रहा और वो कोई ट्रांजिशन ही नहीं शो कर रहा, या फिर जब आप कोई चीज़ टच करो तो उसका कलर ही चेंज हो रखा, जब आपने कि उसमें लगाया कि जब आप उसे होवर करोगे तो कलर चेंज होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपकी स्मूथ डेमो नहीं हो पाती और लोगों को लगता है कि ये तो अच्छा प्रोडक्ट है नहीं। देन कम्स ईजी एक्सप्लेनेशन। बहुत ज़्यादा भारी भरकम वर्ड यूज़ करना, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करना जो आपकी ऑडियंस को पता ही ना हो, ठीक है। तो फिर क्या आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएगी? वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। सो वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग योर आइडिया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेसिबल टर्म्स यूज़ करो, ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करो, ना आप बहुत ज़्यादा डंपिंग डाउन करें, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ओवर एक्सेगरेटिंग भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसको चीज़ें समझ आ पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर यूजिंग योर एप्स, ठीक है।
So this was all about my presentation. I hope it worked. Thank you so much to everyone. If you have any doubts, you can ask me. Let's start our prototype competition. Before inviting our first participant, may I introduce you all to the judgment panel. We have Ms. Manika Sethi from Computer Science Department, Mrs. Sushma Sharma ma'am from Computer Science Department, and Mrs. Jasmeet Kaur ma'am from Economics Department. Let's welcome our judges of today's program. Taliya. And now, I will invite our first competitor team, which is Aarti and Srishti. Give it up for both of them. According to Press Information Bureau, इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2035 तक 60% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से बनाई जाएगी, जो पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है एनर्जी साथी। ये एक एआई पावर्ड स्मार्ट असिस्टेंट है जो यूजर्स को गाइड करेगा कि सोलर उनके लिए सुटेबल है या नहीं और उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इस ऐप का मेन फीचर है एआई बेस्ड सोलर रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसमें यूजर अपनी लोकेशन एंटर करता है, मंथली बिल एंटर करेगा और रूफ साइज, उसके अकॉर्डिंग ऐप इंस्टेंटली बताता है कि आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी सेविंग होगी, जो यूजर का कंफ्यूजन कंप्लीटली रिमूव कर देता है। I would like to invite Tanu from BCA second year. So please give a huge round of applause for her also. Good afternoon everyone. I am Tanu from BC second year. Today I am presenting my project on Smart Waste Watch app. My problem is cities face poor waste management due to delayed reporting, so proper tracking and lack of awareness. I solved this by creating Smart Waste Watch where users can upload images, auto detect waste using AI and share real-time location for quick action by authorities. From BC second year. Today I am going to present my project on the topic Animal Use App. Project is based on solving a real-life problem where injured and stray animals do not get help on time due to lack of communication between people and rescue teams. Through this app, we aim to create a simple and fast way to connect people with animal. जैसे हम आजकल देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, डेली उसमें कि हम मतलब इंजर्ड डॉग रोड पार पे पड़े होते हैं, उनको कोई भी मार के या कोई भी टक्कर मार के चला जाता है, तो उनको कोई भी बीमारी लग जाती है, बीमारी हो जाती है। तो मैम उनके लिए हमने एक ऐप बनाई है। एनजीओ को कॉल करेंगे, उनकी फ़ोटो क्लिक करके उनको कॉल करेंगे, भाई इनको आके इनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो संभालेंगे। हाँ जी, तो मैम हम उनके फ़ोटो डाल देंगे, लाइव लोकेशन डालेंगे जिस उस पर लोग होंगे। So the problem is our manual attendance system. हमारे मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। जैसे मैनुअल अटेंडेंस के दौरान काफ़ी मतलब मैनुअल अटेंडेंस हमारी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और जिसमें प्रॉक्सी अटेंडेंस के चांसेस होते हैं। मैनुअल अटेंडेंस में जैसे मैनुअल अटेंडेंस हमको स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बताती है। अब ऐसा हो सकता है कि कई बार अपनी लो अटेंडेंस स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट पे पता लगे, तो इस प्रॉब्लम को भी मैंने अपने इस प्रोटोटाइप में टैकल किया है इनके से। एक्चुअली आई जस्ट डेवलप द प्रोटोटाइप नाउ एंड मार्केट एरिया और स्टार्टअप के बारे में मैंने इतना वर्क नहीं करा। आई हैव द आइडिया और मैंने एक डेमो प्रोटोटाइप बनाया जो मेरे पास है। स्टूडेंट, फैकल्टी एंड द एडमिन और द एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हम जो स्टूडेंट के आईडी से लॉगिन करेंगे तो हमको उसमें अपने क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे। एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद स्टूडेंट अपना सारा डेटा देख सकेंगे कि वो अपनी क्लास में 80% अटेंडेंस पे है या फिर लो अटेंडेंस पे है, दैट इज 60% अटेंडेंस। और उनकी सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस भी इस ऐप में उनको दिखाई देगी। अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं बिहाइंड, तो वो उसको भी कवर कर पाएंगे क्योंकि उसको उनको उसकी डेली एनालिटिक्स मिलेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस डेमोन्स्ट्रेशन। Now I would like to call Sunana for representing her project. Give a round of applause to her.
Good afternoon, ma'am. Today I am going to present my idea, smart parking system. जैसे कि सिटीज आर ग्रोइंग, जैसे कि सिटियाँ वो ग्रो कर रही है और इससे व्हीकल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, हर एक दिन व्हीकल इंक्रीज हो रहे हैं और ऐसे पार्किंग नहीं मिलती है अब टाइम पर, तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और फ्यूल भी वेस्ट होता है। तो इसी से मतलब टाइम को बचाने के लिए पार्किंग बनाए। As we come to the end of this wonderful session, it is time to express our sincere gratitude. We extend our heartfelt thanks to our respected Principal Madam and IIC President Dr. Surinder Kaur for her constant encouragement. Special thanks to Mrs. Vivek, Convener IIC, for her guidance and support. We are truly grateful to Ms. Malika Sethi and the entire organizing team for their efforts. A big thank to our resource persons, Mrs. Mamta Thapar and Ms. Khushi Kumari, for sharing their valuable knowledge. We also appreciate all participants of the prototype competition for their innovative contributions. And lastly, thank you to our audience for your time, attention and enthusiasm. Thank you everyone. Have a great day ahead.